सूरज सिंधे। ओके, ठीक, चलो। सूरज, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो बेटा, चलो। यस सर। ओके, चलो। Phylum Porifera, Cycon, Skypass, Spongilla, Spongia, Bathon. Phylum Cinedrata, Phycelia portuguese manner for Adamsia ciani, Mount Penatula C, then Gorgonia C, then Meandrina brain coral, Aurelia jellyfish, Obelia poem, Hydra, Phylum Pinofora, Eurobrachia, Pinofora, Planaria regeneration, Phylum Escarnotis. Ascarius roundworm, Ucheria filarium, Ankylostoma hookworm, Phylum Annelida, Nereis dioecious, Peritima earthworm, Hirudinaria blood-sucking leech, Phylum Arthropoda, economically important insects, Apically, Bombexill, worm Lexiper, Lexinsect, vectors, Anopheles malaria, Culex filarium, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, Gregarious pest, Locust locus, living fossils, Limulus stingray, Phyla mollusca, Phyla apus, Pintada colors, the sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia sea, Dentalium tusk, Chicopleura cheeton, Phylum Echinodermata, Asterias starfish, Equinus sea urchin, Antedon silly, Cucumaria sea cucumber, Ophiora brittle, star, phylum Hemichordata, Balanoglossus, Psychoglossus, phylum Chordata, subphylum Urochordata, Urochordata, Aspedia, Salpa, Doliolum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or Lansley, subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, class Cyclostoma, Petromyzon lamprey, Magazine hagfish, class Chondrichthyes, Scoliodon dogfish, Tristis sawfish, Prestige Fish, Carcharodon Great White Shark, Trigon Stingray, Torpedo Electric Ray, Class Osteichthyes, marine fishes, Exocetus Flying Fish, Hippocampus Seahorse, Freshwater Fishes, Labio, Rohu, Catla, Cutla, Clarias, Magur, Aquarium Fishes, Betta Fighting Fish, Pterophyllum Angelfish, Class Amphibia, Biophoto, Rana Frog, Hyla Tree Frog, Salamander, Ectaphis limbless Amphibia, Class Reptilium, Chilon Turtle, Testido Turtle, Camelon Tree Lizard, Calotus Garden Lizard, Alligator, Vitapelis Wall Lizard, Poisonous snakes, Naja Cobra, Bungarus Crate, Vipera Viper, Class Elves, Corvus Crow, Columba Pigeon, Citacula Parrot, Chuti Ostrich, Cow Peacock, Appendice Penguin, Neophon Vulture, Class Mammalia, or Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Dolphinus common, Dolphin, Balænoptera blue whale, Panthera tigris, tiger, Panthera leo lion. Thank you.
चलो now please pay attention. We are dealing with दोस्तों क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। ओके, अरे मी थोडस बाहेर गेलो होतो. सूरज, थँक्यू सो मच बेटा. कुठलं गाव आहे तुझं सूरज? सिल्लोड सर. सिल्लोड. आणि स्कूल? स्वामी विवेकानंद विद्यालय सिल्लोड. अरे वाह, मॉर्निंगला पण तोच होता त्याच शाळेचा विद्यार्थी. बहुत ही बढ़िया सूरज बेटा, सूरज शिंदे. ओके, मी भास्कर शिंदे. तुझ्या पुढे एक गोष्ट लागायला पाहिजे, डॉक्टर. बहुत ही बढ़िया, थँक्यू थँक्यू. नाउ amphibia, class amphibia. So meaning of why they are named so, why they are named so. Okay, हा थोडस टूथ एक होतंय, थोडस पेन होतंय, काय प्रॉब्लेम नाहीये, पण मी शिकवतो. ओके, शिकवल्यामुळेच ते जाईल असं मला वाटतंय, नसतं ते जास्त होईल. नाव दे आर नेम्ड सो, named so why? As amphi means दोस्तों, the meaning of term amphi means dwell, amphi means dwell, and the meaning of term bios means life, bio means life. So इसका मतलब they dwell life नहीं है, they have dwell habitat, they are living in a two habitat at the same time. Okay, they are living in both water as well as on land. So दोस्तों, they have dwell habitat, they have dwell habitat, मतलब they living in water, they live on land and in water. Okay, they live on land as well as in water, and because of that their number of species or their species number is decreasing drastically. Do you know that there is one concept of extinction? There are so many species which are going to be extinct. So there are different species of amphibians which are present in Western Ghat. Western Ghat means सह्याद्रीच्या रांगा. ओके, ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऊटी वगैरह सब, ये वेस्टर्न कॉट, उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट. तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज है एम्फीबियन के, बट दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. व्हाई? बिकॉज इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट दे हैव टू मेंटेन dual habitat. They are living on land as well as in water, because and that's why okay, that's why दोस्तों their number, the number of species of amphibian is decreasing drastically. They have dual habitat, they are living in land as well as in water, but most of them are fresh water. Aquatic तो है दोस्तों, उसमें भी most of them
present in living in fresh water. Most of them are living in fresh water. और खास करके वार्मर कंट्रीज मींस कोल्ड कंट्रीज में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में कम है एम्फीबियंस. दे आर प्रेजेंट इन वार्मर कंट्रीज लाइक इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज. नाउ दोस्तों, अगर बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन मींस रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. So they do not have ability of thermoregulation by themselves. So they are दोस्तों, they are cold-blooded animal. They are poikilothermic or they are ectothermic. Like fishes and reptiles, they are poikilothermic. Now, what is the meaning of term poikilothermic? Poikilothermic matlab these are the animal. Their body temperature is regulated by external temperature. कुछ लोग भी ऐसे हैं पॉइक्यूलोथर्मिक, या फिर उन्हें कहते हैं दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है एक्टोथर्मिक. ये समझ लेना है, एक्टो मींस एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्टोथर्मिक एनिमल, सबका मीनिंग एक ही है ना. मैं आपको डिटेल में एक बार पहले समझाया है कि इसका मतलब क्या है, कि इनमें ना दे लैक द एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन. They do not have the ability of thermoregulation. Their body temperature is controlled by external temperature, or their body temperature changes with the change in the external temperature. Such animal is called as the poikilothermic. Such animal is called as a poikilothermic. Such animal is called as a cold-blooded animal, or such animal is called as a ectothermic animal. MCQ. Like, और ये कौन-कौन से हैं? Fishes, amphibians and reptile are ectothermic animal. Fishes, amphibians and reptile are ectothermic animal. कुछ लोग भी ऐसे हैं दोस्तों एक्टोथर्मल, दूसरों का जो दूसरे जो कहते हैं वही करते रहते हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे ने जो कहा वो नहीं करना है, पर वो खुद का कुछ भी. एक दोस्तों एक सेंटेंस है, ओके, सुनो सब लोगों की सुनो और करो अपने मन की. ओके, सुनो जन की और करो मन की, ऐसा एक है. लोगों का सुनो, जो अच्छा है वो ले लो, पर जो करना है हमें करना है, उसे फिल्टर करके हमें अप्लाई करना है हमारे ऊपर. तो ये जो है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, इट इज रेगुलेटेड बाय एक्सटर्नल टेम्परेचर. दे लैक द एबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है दोस्तों? पॉइक्यूलोथर्मिक का मतलब होता है दे डू नॉट regulate, they do not regulate their own body temperature. They do not regulate their own body temperature. Okay, they lack the mechanism of homeostasis. Mechanism of homeo means, your homeostasis means it is an ability to control the internal temperature at a constant level, to keep the temperature at a constant level. Okay, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. Okay, they lack the mechanism of homeostasis and their body temperature. इनका जो होता है दोस्तों, their body temperature is controlled by, their body temperature is controlled by external temperature, controlled by external temperature. इसीलिए उन्हें कहा गया है एक्टोथर्मिक एनिमल. इसीलिए they are named as ectothermic. Thermos means heat, और कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्सटर्नल साइड, एक्सटर्नल टेम्परेचर उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है. एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर. इसी को अलग अलग लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं, इसी मतलब को. देयर बॉडी टेम्परेचर change with, their body temperature change with change in the surrounding temperature, change in the surrounding temperature, और सराउंडिंग एम्बियंस का जो टेम्परेचर है उनके जैसा उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है. और ऐसे एनिमल को कहा जाता है पॉइक्यूलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक एनिमल. और ऐसे कौन है बोलता हूं,
बोलता हूँ श्रेया बेटा, कोई बात नहीं। ओके ओके बढ़िया। ओके नाउ पाइकोलोथर्मिक कौन है दोस्तों, याद रखो यहीं पे हर बार लिखेंगे, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आर आल्सो दोस्तों, वो भी कैसे है, आर आल्सो, दे आर आल्सो, दैट इज पाइकोलोथर्मिक, दे आर आल्सो पाइकोलोथर्मिक, ये याद रखो, दे आर आल्सो पाइकोलोथर्मिक, फिशेस एंड रेप्टाइल आर आल्सो पाइकोलोथर्मिक, याद रखो, फिशेस एंड रेप्टाइल आर आल्सो पाइकोलोथर्मिक। इज दैट ओके, समझ में आ रहा है? नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ यहां पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर दोस्तों ज्यादा है तो बॉडी, जो फ्रॉग है, सपोज मान लो फ्रॉग, ओके, उसके बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा तो दैट में कॉज डैमेज टू दैट फ्रॉग, दैट में कॉज डैमेज टू दोस्तों जो बायो केमिकल या फिर जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनके अंदर, दैट पाथवे में गेट अफेक्टेड। ओके, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कोई भी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, दीज आर द एंजाइम डिपेंडेंट पाथवे, और एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ओके घड़ी घड़ी, तो दीज मेटाबॉलिक पाथवे में अफेक्टेड एंड दे में कॉजेस अ डैमेज टू द फ्रॉग। और इसीलिए फ्रॉग दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, to maintain their body temperature, to maintain their body temperature, to maintain their body temperature, frog will undergo temperature, frog जो होता है दोस्तों, frog will undergo that is hibernation and estivation, या फिर estivation and hibernation, estivation and hibernation, याद रखो, estivation and hibernation. Now what is meant by estivation and what is meant by hibernation, इसका मतलब क्या है? Estivation or hibernation, estivation means दोस्तों that is called as a summer sleep, estivation means summer sleep and hibernation means winter sleep. estivation का मतलब होता है summer sleep, मतलब क्या है? समर स्लीप का मतलब यह है दोस्तों, अगर बॉडी का टेम्परेचर, सपोज मान लो समर में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, 50 डिग्री सेल्सियस है और 45 डिग्री सेल्सियस है, तो उनके बॉडी का अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो फ्रॉग ड्यूरिंग समर दे बरो देमसेल्व्स बिलो द सॉइल, दे बरो देमसेल्व्स, ओके, थोड़ा 1-2 फीट नीचे जाते हैं या फिर आधा फीट जमीन के अंदर, और वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन करते हैं खुद की। तो ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन और समर स्लीप क्या है दोस्तों, किसके लिए है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टू प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हाई टेम्परेचर, हम क्या कराते हैं, हम लगाते हैं एसी फ्रॉम हायर टेम्परेचर इन समर, इसीलिए कहा जाता है एस्टिवेशन। और ये हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप। और ये विंटर स्लीप किस लिए दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी विंटर में बहुत टेम्परेचर कम हो सकता है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, सो उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे कहते हैं हाइपरथर्मिया। सो दोस्तों हाइबरनेशन और विंटर स्लीप किसके लिए है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लो टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम दोस्तों फ्रॉम लो टेम्परेचर, इसलिए होता है, याद रखो, हाइबरनेशन। ये एस्टिवेशन है, कैसे कुछ लोगों को याद नहीं रहता कि हाइबरनेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है, तो एस्टिवेशन में याद रखो दोस्तों, एस्टिवेशन में यस है और इस समर स्लीप में भी यस है। और डू यू नो दैट, हमने देखा कि इन वर्टिब्रेट, खास करके इन एम्फीबियंस, द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन आर 4,
देयर आर 4 ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, याद रखो, देयर आर 4 ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, पावसाळ्यात बाहेर निघतात. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन. आगे थोड़ा सा यहाँ पे होता है क्या, तो होता क्या, ड्यूरिंग estivation and hibernation, during estivation and hibernation होता क्या है, during estivation and hibernation they buried themselves below the soil, they buried themselves, okay, below the soil, बीळामध्ये जातात, below the soil, एक slow down their metabolic activity, slow down their metabolic activity, ताकि ज्यादा एनर्जी ना लगे. स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, खाते कुछ भी नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो फैट है वही यूज करते हैं. स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये होता है. एंड 3 चीजें है, एंड तो फिर रेस्पायर थ्रू द, बोलो आपके पास ऑप्शन है स्किन, लंग्स, गिल्स और बकोफेरेंजियल कैविटी. रेस्पायर थ्रू स्किन, एमसीक्यू. रेस्पायर थ्रू स्किन, एमसीक्यू. स्किन उसे कहते हैं दोस्तों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, याद रखो. ये होगा. नो, आगे बढ़ते हैं. दे आर दोस्तों, दे आर फर्स्ट टेट्रापोडा है. फर्स्ट टेट्रापोडा, ये सुपर क्लास है. टेट्रापोडा मींस 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है. टेट्रापोडा मींस हैविंग 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, हैविंग 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं दोस्तों, दैट इज फोरलिम एंड हैंडलिम. याद रखो, जो अपर लिम है उन्हें कहा जाता है फोरलिम, और जो लोअर लिम है उन्हें कहा जाता है हैंडलिम. फोरलिम्स और हैंडलिम, याद रखो, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फोरलिम और हैंडलिम. ओके, फोरलिम और हैंडलिम, they are first tetrapods, now please pay attention. Structural organization. Okay, say this. Yes, जो दिखाना था वो यहाँ पे है. ये है फ्रॉग, एनसीईआरटी की डायग्राम है दोस्तों. ये फ्रॉग है और एनसीईआरटी की डायग्राम है. ओके, टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल. वहां पे 3 एनिमल की पढ़ाई करने वाले हैं हम, दैट इज अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग. तो दोस्तों दे आर फर्स्ट टेट्रापोड, मींस ये अपर लिम्ब है, दिस वन, और उस साइड का एक, और ये लोअर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब. हाइंड लिम्ब का मतलब होता है लोअर लिम्ब. हाइंड लिम्ब का मतलब क्या है दूसरे लैंग्वेज में, ये है दोस्तों लोअर लिम्ब. याद रखो, लोअर लिम्ब. फोर लिम्ब इन्हें कहा जाता है हायर लिम्ब. आपको पता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो डिजिट है हमारे अपर लिम्ब या फिर लोअर लिम्ब, हर एक लिम्ब को 5 डिजिट है. यस और नो? ओके, यस और नो? 5 डिजिट्स है. यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, नीचे हर एक लिम्ब को 5-5 डिजिट्स है. पर यहाँ पे ये जो 4 लिम्ब है यहाँ पे दिखाया नहीं है, but this 4 limb is with only 4 digits and hind limb is with 5 digits. MCQ. Okay, तो दोस्तों ये जो 4 limb होता है, 4 limb it has 4 digits. 4 ही डिजिट्स है. डिजिट्स म्हणजे बोट, उंगलियां. ओके, ये उंगलियां कितने हैं? 4. और कौन से एब्सेंट है? ये भी एमसीक्यू है. थंब इज एब्सेंट देयर.
थंब एब्सेंट है। हैंडलिम कितने हैं? हैंडलिम 2 है, पर कितने डिजिट है? यहाँ पे 5 डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट। और यहाँ पे दोस्तों ये जो हैंडलिम है ना, यहाँ पे ऐसे वेब्ड होते हैं, दीज आर वेब्ड। ये सब एमसीक्यू है, वेब्ड होते हैं, वेब्ड डिजिट्स होते हैं, वेब्ड डिजिट्स फॉर स्विमिंग। नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, एनसीईआरटी में लाइन है, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हेड एंड ट्रंक, नेक इज absent. Their body is divided into 2 parts. कौन से 2 पार्ट है? नंबर 1 दैट इज हेड, और दूसरा पार्ट है दोस्तों ट्रंक। फिनिश, हेड एंड ट्रंक। यही पे लिखता हूं नेक इज absent हियर। ये एमसीक्यू है, नेक इज absent, कैपिटल में लिखा है मतलब इंपॉर्टेंट है। नेक इज absent देयर इन फ्रॉग। ये है ट्रंक जो कि मेन बॉडी बनाता है, और दोस्तों ये है हेड। यही याद रखो। ये जो स्किन होती है दैट इज अ मॉइस्ट स्किन होती है। इट इज रफ इन केस ऑफ दोस्तों टोड, और इट इज स्मूथ इन केस ऑफ फ्रॉग। तो टोड में और फ्रॉग में क्या डिफरेंस है मैं बाद में बता दूंगा आपको, पर जस्ट याद रखो। नाउ उनकी जो स्किन होती है दोस्तों, जो स्किन है, हर एक ऑर्गन देखेंगे स्किन कैसी है, ईयर कैसा है, ओके स्किन कैसी है, ईयर कैसा है, आईज कैसे है, ये सब देखेंगे। सो जो स्किन है दोस्तों, दे हैव मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन ड्यू टू क्यूटेनियस ग्लैंड। स्किन इट इज मॉइस्ट और स्लिपरी, मॉइस्ट और कैसे दोस्तों स्लीपरी है, स्लीपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ cutaneous gland, due to presence of moist, due to presence of दोस्तों that is mucus secreting cutaneous gland, और cutaneous gland होते हैं स्किन के ऊपर, cutaneous glands, and that skin is दोस्तों smooth in case of frog and rough in case of toad। just याद रखो, पर ये इंपॉर्टेंट है कि वो मॉइस्ट होती है, स्किन मॉइस्ट होती है। दोस्तों जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर होता है तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, और वो एक टॉपिक है फिजियोलॉजी में, मसल फिजियोलॉजी। तो मसल में जो अलग अलग ये होता है, मसल में अलग अलग प्रॉपर्टीज है मसल के, एक्साइटमेंट, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रिलैक्सेशन, ओके। तो ये स्टडी करने के लिए ओके वी यूज द फ्रॉग, फ्रॉग का यूज करते हैं। पहले 12th में फ्रॉग का डिसेक्शन था, अभी नहीं है। क्यों नहीं है फ्रॉग का डिसेक्शन? क्योंकि पूरे इंडिया में इतने सारे 12th के कॉलेजेस थे, और पूरा जो फ्रॉग है वो जो वेस्टर्न क्या बोलते कोस्ट है इंडिया का, वेस्टर्न कोस्ट, वही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, शायद केरला ही, यस। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे बहुत सारे फ्रॉग आते थे, पर ज्यादातर क्या करते थे लोग, ये जो महाराष्ट्र और कोकण साइड से वो फ्रॉग वहां से वो पकड़ के, क्योंकि बारिश जहां पे ज्यादा होती थी उस साइड पे, ओके, तो वहां से फ्रॉग पकड़ के पूरे इंडिया को सप्लाई किया जाता था। और उस वेस्टर्न जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहां पे राइस जो है उसकी फार्मिंग होती है बहुत ज्यादा। तो ये जो फ्रॉग है इज अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ सम पेस्ट ऑन राइस। तो राइस के सम जो राइस प्लांट के जो पेस्ट है, पेस्ट मींस सम इंसेक्ट व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग द राइस प्लांट और राइस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले कुछ इंसेक्ट है, उन्हें कहा जाएगा पेस्ट। तो उनको खाने के लिए नेचुरली फ्रॉग थे। पर हुआ क्या दोस्तों, वो जो फ्रॉग, ये इतने सारे डिसेक्शन को फ्रॉग लगने लगे, तो उनके लोगों ने ऐसा सोचा कि अरे जब से ये फ्रॉग पकड़ के लेके जा रहे तब से क्या हुआ है, हमारा राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है। स्टोरी सुनो, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दुनिया में जब से पाप हो रहा है, उनका मतलब फ्रॉग को कट करना, उसका डिसेक्शन करना, वो भी बच्चों से जो 11th 12th में है, तो ये पाप ही है। ओके हाँ, है ना। जो ऐसे जीव है जिसको मारते हैं, अकॉर्डिंग टू सम पीपल इट इज सीन, ये पाप है। तो ये पाप हो रहा है, इसीलिए हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके हमारा जो यील्ड में जो उत्पन्न
वो क्यों कम हो रहा है, तो ये पाप रोकना चाहिए। तो उन्होंने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया। ओके, ये जो फ्रॉग को लेने वाले थे, जो लोग आते थे वहां पे, उनको भगाना शुरू कर दिया। तो और फिर उनका जो आंदोलन है वो बड़े लेवल पे आ गया, और दोस्तों उन्होंने फिर एक लॉ बनाया, और उसमें से फिर एक डिसाइड कर दिया कि जो 12th में 11th 12th में फ्रॉग का डिसेक्शन है वो अभी कैंसिल कर देंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये फिर साइंटिस्ट ने डिटेल रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि एक फ्रॉग इज अ नेचुरल प्रेडेटर ऑफ सम इंसेक्ट व्हिच डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप। अगर फ्रॉग ही नहीं रहे तो वो इंसेक्ट का जो है नंबर बहुत बढ़ जाएगा, और राइस का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। समझा? आर यू गेटिंग मी और नॉट? स्टोरी समझ में आई क्या? फिर जब से फिर डिसेक्शन कैंसिल कर दिया, फ्रॉग अभी के अभी वही है, तो उनकी संख्या बढ़ने लगी, नंबर बढ़ने लगे, तो वो जो पेस्ट था उस राइस क्रॉप के ऊपर उनको वो खाने लगे, और राइस जो डिस्ट्रॉय हो रहा था वो अभी उसका जो क्रॉप का यील्ड है वो बढ़ गया। समझ में आया? सो ये है स्टोरी। इसीलिए 11th 12th में जो फ्रॉग का डिसेक्शन है वो कम अभी नहीं है, और एमबीबीएस में है। एमबीबीएस में फ्रॉग का डिसेक्शन नहीं है, एमबीबीएस में डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन है, नो डाउट। पर फ्रॉग दे कैन बी यूज्ड टू स्टडी द मसल फिजियोलॉजी, और हर एक प्रैक्टिकल में एक फ्रॉग को कट किया जाता है। हर एक प्रैक्टिकल मसल फिजियोलॉजी के जितने सारे प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी के अंदर, एक फ्रॉग को कट किया जाता है, उसका एक मसल है, उसको करंट दिया जाता है, और फिर ये ग्राफ होता है। ओके, तो वो ग्राफ जो है दोस्तों, एक्साइटेबिलिटी, रियलाइजेशन का अलग अलग ग्राफ आते हैं, नो डाउट। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि ये फ्रॉग हमने पकड़े हाथ में, तो ये उनकी जो स्किन है वो स्लिपरी है, वो मॉइस्ट है। आप भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको भी पकड़ना पड़ेगा हाथ में, ठीक है? तो आपको पता चलेगा अरे नहीं यार, तब ग्लोव्स होते हाथ में, ये बात अलग है, पर कभी कभी ग्लोव्स भी नहीं होते। तो ये मॉइस्ट स्किन है, स्लीपर स्किन है, वहां क्या बोलते हैं उसको, सटक जाते हैं हाथ में से। तो याद रखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक इज एब्सेंट, टेल इज आल्सो एब्सेंट, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज सैलामेंडर, व्हिच इज कॉल्ड दोस्तों टेल्ड एम्फीबियंस। यहां पे भी लिखता हूं, टेल इज आल्सो एब्सेंट एक्सेप्ट इन सैलामेंडर। टेल is absent, tail is absent except that is salamander, except salamander। इसे कहते हैं दोस्तों टेल्ड एम्फीबियन। salamander क्या है? salamander ये क्या है? ये है टेल्ड एम्फीबियंस। ओके, और जो मैंने स्टोरी सुनाई आपको, तो उसमें क्या है दोस्तों, वो जो स्टोरी है, ओके, तो ये जो स्टोरी है, तो वो जो फिर लोग हैं जिन्होंने अपोज किया था फ्रॉग की डिसेक्शन को, वो फिर बोलने लगे अरे दुनिया में ना पाप अभी कम हुआ है, इसलिए हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो बढ़ गया है। या ऐसा उनका मानना था, पर साइंटिफिकली मैंने बताया कि एग्जैक्ट क्या हुआ था। इज दैट क्लियर? नाउ दोस्तों, टेल इज एब्सेंट एक्सेप्ट सैलामेंडर। सैलामेंडर को कहा जाता है टेल्ड एम्फीबियंस। सैलामेंडर को क्या बोला जाता है दोस्तों? टेल्ड एम्फीबियंस बोला जाता है। ओके, ओके, स्किन इज दोस्तों, इट इज विदाउट स्केल। जैसे कि रेप्टाइल में है, याद रखो, रेप्टाइल में स्केल है, फिशेस में स्केल है, एम्फीबियंस में स्केल नहीं है। एम्फीबियंस में स्केल नहीं होते हैं। ना दोस्तों, दैट टिम्पैनम, ईयर के बारे में बात करेंगे। ईयर, ओनली द इंटरनल एंड मिडल ईयर इज प्रेजेंट। ओनली दोस्तों, ओनली इंटरनल एंड मिडल ईयर इज प्रेजेंट। तीन टाइप के ईयर होते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर है, सिर्फ मैमल का फीचर है। This external ear or pinna is the characteristic of mammal. Only internal and middle ear is present. Middle ear is present. Okay. और टिम्पैनम जिसे कहते हैं ईयरडम, रिप्रेजेंट द ईयर दोस्तों, याद रखो। ओके,
जो टिम्पॅनम है मीन्स इयर ड्रम, कानाचा पडदा. टिम्पॅनम म्हणजे इयर ड्रम. टिम्पॅनम दोस्तों ईयर ड्रम कहते हैं इसे, ईयर ड्रम, कानाचा पड़दा. ओके, ईयर ड्रम रिप्रेजेंट द ईयर. क्यों? रिप्रेजेंट द ईयर, रिप्रेजेंट द ईयर. हमारे इसमें ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय पिन्ना एज एक्सटर्नल ईयर मीन्स पिन्ना एक्सटर्नल ईयर. जैसे कि दोस्तों आपके लिए इतना याद रखो, ये जो पिन्ना है आर एब्सेंट. These are the feature of external ear are the feature of only mammals. जिनमें भी ईयर दिख रहे मान लो ये मैमल है. ये होगा दोस्तों आईज, सॉरी ईयर के बारे में. नाउ बात करते हैं आईज. डिटेल में नहीं जाऊंगा पर दोस्तों आईज में लक्षण ठेवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. दैट इज आईज हैव आईलिड्स. आईज हैव आईलिड्स. ओके, आईलिड्स होते हैं. नाउ आईज आर कवर्ड बाय दोस्तों निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन. आईज आर कवर्ड बाय निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन. कवर्ड बाय. नाउ ये निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? ये जो निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन है टू प्रोटेक्ट द आईज इन वाटर फ्रॉम वाटर. निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन किसके लिए? टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम वाटर. Okay, when they are in aquatic habitat from water, they cover the eyes to protect from water. दोस्तों ये होगा उसके आईज के बारे में. ना आप मुझे बोलो स्कल कैसी होनी चाहिए. नाउ स्कल कैसी है बोलो? मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक. मोनोकोंडाइलिक मान ले ओनली वन ऑसिपिटल कोंडाइल, और डाइकोंडाइलिक मतलब टू ऑसिपिटल कोंडाइल. तो क्या है दोस्तों? 1 2 1 1 2. तो ये होती है, याद रखो, डाइकोंडाइलिक स्कल होती है. मैं आपको समझाता हूं डाइकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या है. डाइकोंडाइलिक स्कल मींस टू ऑसिपिटल कोंडाइल होते हैं, टू ऑसिपिटल कोंडाइल. तो ये एक निमोनिक्स याद रखो दोस्तों. वो निमोनिक्स है फार्बियम, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स. फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. फार्बियम. फार्बियम का मतलब क्या है? फार्बियम, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. दीज आर द 5 क्लासेस इन वर्टिब्रेट. तो इसके लिए दोस्तों ऐसे याद रखेंगे, दैट इज 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2. कैसे याद रखेंगे? 1 2 1 1 2. कैसे याद रखेंगे? 1 2 1 1 2. हाँ, 1 2 1 1 2 याद रखो. 1 2 1 1 2 मीन्स डाइकोंडाइल स्कल है. 2 ऑसिपिटल कोंडाइल होते हैं. डाइकोंडाइल स्कल मतलब क्या है? 2 ऑसिपिटल कोंडाइल होते हैं. याद रखो, डाइकोंडाइल स्कल मतलब 2 ऑसिपिटल कोंडाइल होते हैं. ओके, नाउ पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों, दैट इज क्रैनियल नर्व कितने हैं? व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व? कितने हैं दोस्तों? 14. तो दोस्तों 10 पेयर्स होंगे. कितने पेयर्स होते हैं? These are the nerve which are arises from the brain. जो ब्रेन नर्व 2 जगह से आते हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड. द नर्व which are arises from brain उन्हें कहते हैं क्रैनियल नर्व, और द नर्व which are arises from spinal cord उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व. So there are 10 pair of cranial nerves. निमोनिक्स क्या है? 14. निमोनिक्स क्या है दोस्तों? 14. 14 का मतलब क्या है? फाडेन टूटेन, हम मराठी शब्द है फाडेन. ओके, फट जाएगा, आप बोलते ना फट जाएगा. फाटेन, फा या फिर फाटेन मतलब फिशेस एंड एम्फीबियंस हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व. बाकी के जो है रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, उनमें 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व होते हैं. याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. आर दे एमनियन और एम्फीबियंस क्या है दोस्तों? दे आर एमनियोट्स और अनएमनियोट्स. पान याद रखेंगे. दे आर दोस्तों, दे आर याद रखो अनएमनियोट्स. एमनियोट्स, दे आर अनएमनियोट्स मींस याद रखिए पान. निमोनिक्स क्या है हमारे पास? पान. पान मतलब PAAN. क्या निमोनिक्स है? PAAN मतलब P मतलब पाइसेस मींस फिशेस,
ये मतलब एम्फीबियंस है। एन डबल फिर से ए और एन, एन मतलब एन एमनियोट। सो पाइसेस एंड एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? दैट इज पाइसेस और एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स। पाइसेस और एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स। पाइसेस और एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स। Pisces or amphibians or anemniotes. Okay. Pisces and amphibians are anemniotes. पान याद रखो. Okay. They are anemniotes. Anemniotes means extra embryonic membrane are absent. Anemniotes का मीनिंग क्या होता है? Anemniotes का मीनिंग है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। इसका मतलब यह है कि जो एम्ब्रियो के अराउंड कुछ मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। वो है दोस्तों कोरियन, एमनियन, ओलेंटॉइस और योक सैक। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं एब्सेंट है। मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों? एब्सेंट। सच एनिमल इज कॉल्ड एज द एनेमनियोट्स। सच एनिमल इज नेम्ड एज दोस्तों एनेमनियोट्स। ओके, चारों के चारों एब्सेंट है। चारों के चारों एब्सेंट है, याद रखो, चारों के चारों एब्सेंट होते हैं। ओके, ये होगा। उनका जो हार्ट है, हार्ट इज दोस्तों, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। 3 चेम्बर्ड with दोस्तों 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। मैंने बताया 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है दोस्तों। with 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। उनमें कैसा है दोस्तों? दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैंने ये पढ़ा है व्हाट इज मीन बाय इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? एंड देयर हार्ट पंप्स आउट व्हिच टाइप ऑफ ब्लड? क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया सृष्टि, वैभवी, श्रीधर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हार्ट पंप्स आउट मिक्स टाइप ऑफ ब्लड एंड हार्ट pumps out mixed blood, deoxygenated and oxygenated। यह मैंने पढ़ा है आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ये अबाउट द सर्कुलेशन इन फ्रॉग, खास करके हार्ट के बारे में। नाउ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज नाउ क्लोएका इज प्रेजेंट। क्लोएका इज प्रेजेंट। नाउ क्लोएका क्या है दोस्तों? It is a common chamber for the digestive tract, reproductive tract and urinary tract. All 3 tracts open in a common chamber known as the cloaca, and that cloaca open to exterior. So cloaca is present. तो ये चेम्बर जैसा है like this। मैं आपको समझाता हूं what is meant by cloaca ताकि आपको समझ में आएगा। ये क्लोएका क्या है सर? ये क्लोएका जरा बताओ हमें। मान लो दिस इज 1 ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट है मान लो। ये मान लो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और मान लो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ये ऐसे 3 ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं क्लोएका में, और ये खुद क्लोएका ऐसे आउटसाइड ओपन हो रहा है लाइक दिस। दिस इज ओपनिंग टू आउटसाइड। ये क्लोएकल ओपनिंग है टू आउटसाइड लाइक दिस। मान लो ये जो ट्रैक्ट है दोस्तों ये है क्लोएका। दिस इज इन कॉमन चेम्बर फॉर, मान लो ये कौन सा ट्रैक्ट है? ये है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसमें स्पर्म आ जाएंगे और एग जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इट कैरीज आइदर स्पर्म और एग। ओके, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या कैरी करेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कैरी स्पर्म अगर मेल है स्पर्म, और दोस्तों एग्स इन फीमेल्स।
नाउ ये क्या है, दिस इज एन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये कौन सा ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये कैरी क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दोस्तों अप टू क्लाइका इट कैरीज अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अरे कहाँ चला गया, गायब हो गया है, कहाँ चला गया, अरे क्लाइका कहाँ चला गया। वापस आ जाओ, यही पे है, कहीं मत जाओ भाई। तो ये जो है इट कैरीज, कैरी दोस्तों, कैरी अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड टू द क्लाइका। और ये है यूरिनरी ट्रैक्ट। सबको पता है आपको क्या कैरी करता है, कैरी यूरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट, कैरी यूरिन। ये सब कहां पे आएंगे, ये तीनों चीजें, इट कैरीज यूरिन, ये सभी चीजें अनडाइजेस्टेड फूड मींस फीकल मैटर, यूरिन एंड एग और स्पर्म, ये आते क्लाइका में। और दोस्तों दिस इज एन एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ क्लाइका, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ क्लाइका। समझे आप व्हाट इज मीन बाय क्लाइका, ओपनिंग ऑफ क्लाइका। दिस क्लाइका ओपन टू आउटसाइड, दिस क्लाइका ओपन टू आउटसाइड। समझे आप, कुछ इस तरीके का सिनारियो है, समझे आप। फीकल मैटर यहां से आएगा एग और स्पर्म, यहां से फीकल मैटर, यहां से यूरिन, और यहां से बाहर। एनस नाम का कॉन्सेप्ट एब्सेंट है यहाँ पे, समझे अभी। क्लाइका क्या है, क्लाइका इज प्रेजेंट। सो क्लाइका इज अ कॉमन चेंबर फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर reproductive tract, digestive tract and urinary tract open, and that cloaca open to outside. What is cloaca? तो क्लोइका के बारे में अगर लिखेंगे, क्लोइका इज अ कॉमन चेंबर, क्लोइका इज अ कॉमन चेंबर, क्लोइका इज अ कॉमन चेंबर, ओके, फॉर दोस्तों, फॉर दैट इज reproductive tract, reproductive tract, digestive tract, reproductive tract, digestive tract and urinary tract। इन सभी के लिए ये कॉमन चेंबर है, urinary tract, ओके। एंड क्लाइका ओपन टू आउटसाइड। दोस्तों क्लाइका ओपन टू आउटसाइड, समझे। एक टेम्पररी स्टेशन है, यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होता है और फिर वो बाहर फेंका जाता है। इज दैट क्लियर, ओके। एनस एब्सेंट है बेटा, एनस नहीं है, क्लाइका है यहाँ पे, ओके। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होती है, एनस। एंटीरियर ओपनिंग है माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग है एनस, तो एब्सेंट होगा, डायरेक्ट वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लाइका में ओपन होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। इनमें जो किडनी है दोस्तों वो मेजोनेफ्रिक होती है, याद रखो। किडनी कैसा है, मैंने बोला है मेजोनेफ्रिक होती है, किडनी मेजोनेफ्रिक है, मेजोनेफ्रोस से डिराइव होती है। मेजोनेफ्रिक किडनी होती है, डिराइव्ड फ्रॉम मेजोनेफ्रिक पार्ट ऑफ द नेफ्रिक डक्ट, ओके। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो होते हैं दोनों तरफ, दोनों साइड पे है। एक है दोस्तों अमोनिया, अमोनिया किसमें होगा, इन टैडपोल लार्वा, जो फ्रॉग का लार्वा है दोस्तों, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, याद रखो, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग वो अमोनोटेलिक होता है। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है। और फ्रॉग खुद, अडल्ट फ्रॉग दोस्तों, यूरिया इन अडल्ट फ्रॉग, इन अडल्ट फ्रॉग और बहुत सारे एनिमल में, एम्फीबियंस में, यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये याद रखो। इट इज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नाउ रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग कैसा होता है, या फिर एम्फीबियंस, खास करके फ्रॉग बताता हूं दोस्तों। दैट इज नंबर 1 रेस्पिरेशन इन फ्रॉग वाया थ्रू, किसके थ्रू होगा दोस्तों, तो 4 अलग अलग प्रकार के ऑर्गन है। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड दोस्तों वाया थ्रू
गिल्स, ओके गिल्स, पर किसमें गिल्स? इन टैडपोल लार्वा, ये एमसीक्यू। टैडपोल लार्वा, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू दोस्तों। टैडपोल लार्वा, रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स इन टैडपोल लार्वा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। टाइम झालेला आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, हम रुकते हैं यहीं पे। ओके, गिल्स, tadpole larva, okay, tadpole larva in water. Now point number 2, that is, इतना लिखता हूं और फिर रुकता हूं। स्किन, आपको क्या लगता है? कॉमन सेंस यूज करो या फिर आपका जो भी नॉलेज है वो यूज करो। जो अडल्ट फ्रॉग है, अगर वो वाटर में चला गया, उसकी ड्वेल हैबिटेट है लैंड, नो डाउट। अगर लैंड पे है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बकोफेरेंजियल कैविटी या फिर लंग्स होता है। पर मान लो वाटर में चला गया, व्हाट विल बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन? अगर वो वाटर में चला जाता है तो व्हाट विल बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन? एडल्ट फ्रॉग अगर वाटर में चला जाता है, लोगों को लगता है कि अगर वाटर में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है, पर गलत है, स्किन है। ओके, स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, दोस्तों, इन अडल्ट फ्रॉग, इन अडल्ट फ्रॉग। ओके ओके, अडल्ट, इन अडल्ट फ्रॉग इन वाटर। अगर वो वाटर में है, सो स्किन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अडल्ट फ्रॉग। ओके, और एंड ड्यूरिंग दोस्तों, एंड ड्यूरिंग हाइबर एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तभी भी स्किन इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दोस्तों। और लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी जो होते हैं, नंबर 3 दोस्तों, मान लो यहाँ पे लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी है, लंग्स, नंबर 4 पे है बकोफेरेंजियल कैविटी। दिस इज आल्सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग। एक्चुअली लंग्स से भी ज्यादा ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये है बकोफेरेंजियल कैविटी। सो ये जो बकोफेरेंजियल कैविटी है दोस्तों, दैट इज ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। दीज आर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके ओके, इन अडल्ट फ्रॉग में होंगे, इन अडल्ट फ्रॉग या फिर अडल्ट एम्फीबियंस, ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ड्यूरिंग कब? ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये इंपॉर्टेंट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ही याद रखो। ये 4 टाइप के रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए, गिल्स, स्किन, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी। सो रेस्पिरेशन वाया गिल्स, इसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वाया स्किन, उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन वाया लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी, उसे कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, इतना ही याद रखो पहले तो, ठीक है। बस 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 आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा फ्रॉग बचा है, कल बात करेंगे फ्रॉग के बारे में, आज के लिए बस इतना ही। बात की थी हम दोस्तों, बात कर रहे हैं अबाउट द फ्रॉग क्लास एम्फीबिया। Why they are named so? Because amphi means dwell and bio means life. They have दोस्तों dwell habitat. They live on land and in water, and because of that they are facing the threat of extinction. Okay, dwell habitat की वजह से, as due to which dwell habitat, so due to which याद रखो, ये MCQ, they are facing threat of extinction means, ऐसे थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब यह है दोस्तों, अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये गायब होने वाले हैं। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मोस्ट ऑफ देम लिविंग इन फ्रेश वाटर। थर्मो रेगुलेशन, दे आर पाइक्यूलोथर्मिक, कोल्ड बॉडीड है, एक्टोथर्मिक एनिमल है, जैसे फिशेस और रेप्टाइल है। दे डू नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। दे लैक मींस एब्सेंट, लैक का मतलब क्या है? एब्सेंट।
द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस मींस, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज होम्योस्टैसिस? इट इज एन एबिलिटी to maintain the internal temperature at a constant level. Stasis means stable. Homeo means internal environment. Stable internal environment. Stable और stable की जगह constant is the correct word. Constant internal environment. इसे कहते हैं homeostasis. Constant internal environment. वो नहीं होता है उनमें. Their body temperature is controlled by external temperature, and their body temperature change with the change in the external temperature. To maintain their body temperature, frog will undergo estivation or hibernation. Estivation means summer sleep, hibernation means winter sleep. Purpose of estivation is to protect their body from the high temperature, or purpose of hibernation is to protect their body from the low temperature. Okay, estivation किसके लिए? To prevent. ये MCQ आएगा. Estivation किसके लिए? To prevent hyperthermia. Means to prevent hyperthermia. Body hyperthermia का मतलब होता है increased body temperature. To prevent hyperthermia. और hibernation किसके लिए? To prevent hypothermia. To prevent hypothermia means low body temperature. नहीं होने देना है, बंद, उसे रोकना है. During estivation hibernation, they buried themselves below the soil, slow down their metabolic activity and respire through skin. उसे कहते हैं cutaneous respiration. फिर हमने देखा they are first tetrapods means having two pairs of limbs, that is forelimbs or hind limb. Forelimbs means upper limb, ये वाले जो है मेरे, और hind limbs means lower limb. Forelimbs are with 4 digits, FORE or FOUR, ऐसे याद रखो. Hind limbs are with 5 digits, or hind limbs are have webbed digits. Their body is divided into mainly two parts, head and trunk. Neck is absent, even tail is absent. Skin कैसे होती है? Moist or slippery skin है due to presence of cutaneous gland, and it is without scale है. फिर हमने देखा दोस्तों ईयर ओनली इंटरनल और मिडल ईयर होता है. टिम्पैनम और ईयरडर्म रिप्रेजेंट द ईयर, एज एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर एब्सेंट. Eyes have eyelids. They are covered with nictitating membrane. Eyes are covered with nictitating membrane to protect from water. Skull dicondylic है, 2 occipital condyle है. Far BM उसका निमोनिक्स है 1 to 112. Cranial nerve 10 pairs होते हैं. Far 10 उसका निमोनिक्स है. Fixation amphibians में 10 pair है. They are anemniotes. Span उसका निमोनिक्स है. That is Pisces and amphibians are anemniotes, means extra embryonic membranes are absent. Heart is 3 chambered with 2 auricles and 1 ventricles. They have incomplete double circulation and heart pumps out mixed blood. ये होता है. फिर दोस्तों cloaca present होगा, is a common chamber which receive the reproductive tract, digestive tract and urinary tract, and which open to the outside. फिर हमने ये देखा दोस्तों kidney mesonephric है. Product ammonia in tadpole larva of frog, urea in adult frog, respiration in frog through the gills, tadpole larva in water. Skin, gills, respiration via gills occur in tadpole larva. Skin, that is adult frog in water or during estivation and hibernation respire through skin. Or adult frog when it is on terrestrial habitat respire through either lungs or buccopharyngeal cavity. फिर दोस्तों ये मोस्टली डायोसियस है, बेंडूक आणि बेंडिकुळी असं 2 वेगवेगळे असतात. बोलूया, ठीक आहे. थँक्यू सो मच. 5 सप्टेंबरला नेक्स्ट जम्बो टेस्ट आहे. 5 सप्टेंबरला त्याचा सिलेबस लक्षात ठेवा, मी लिहून दिलेला आहे. तुम्ही वाटलंच तर रिनल हेपॅटिक बाकी आणखी ना ते बोलतो मी. रिनल आणि हेपॅटिक पोर्टल सिस्टम बाकी आहे, उद्याच्याला बोलूया. पोर्टल सिस्टम बाकी आहे, शिकवतो उद्याच्याला, ठीक आहे. मग हे फ्रॉग आणि पोर्टल सिस्टम आणि मग रेप्टाइल या बघूया, ठीक आहे. चलो, थँक्यू. पोर्टल सिस्टम बाकी आहे ना, मला माहिती आहे, मी शिकवतो. एका भाषेत सांगू, इट इज अ वेनस कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन. सपोज दिस इज ऑर्गन नंबर 1, दिस इज ऑर्गन नंबर 2, और इन दोनों में वेन का कनेक्शन है. कुछ वेन्स यहां से निकले हैं और यहां तक गए हैं, तो ये 2 वेन का कनेक्शन है. वेन मींस दीज आर द ब्लड वेसल व्हिच कैरीज, यूजुअली अगर कहा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और व्हिच कैरीज द ब्लड टुवर्ड द हार्ट. तो अगर 2, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम. 2 ऑर्गन के बीच में वेनस कनेक्शन है तो उसे कहेंगे पोर्टल सिस्टम, ठीक है. आज कशावर डीपीपी? आज एम्फीबियंस के ऊपर डीपीपी आज पढ़ो, ठीक है. रिवो रिसेप्टर, ओके, बढ़िया.
ओके, ये कहाँ पढ़ा बेटा आयुष आपने? गिजार्ड भी एक्सप्लेन करेंगे। वो जो रिसेप्टर होते बेटा, जो वाटर फ्लो है वो किस तरफ है उसको सेंस करते हैं। क्योंकि वाटर का डायरेक्शन, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन कहाँ पे है, वाटर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो सेंस करने के लिए रियो रिसेप्टर होते हैं फिशेस में और कुछ एम्फीबियंस में। जंबो टेस्ट के टॉपिक बेटा सिलेबस मैंने बोल दिया, फिर भी वैभव सर को पूछो, स्क्रीनशॉट लगे स्पॉट हो। फिर भी एक बार भेजता हूं ग्रुप के ऊपर, ठीक है। एक चलो, नहीं नेक सभी में एब्सेंट है, नेक वाला कोई भी एम्फीबियंस नहीं है। ओके, फ्रॉग हमारे सिलेबस में है इसलिए मैंने फ्रॉग ज्यादा यूज किया शब्द, ठीक है। एनस नहीं है इनमें, क्लोइका का ओपनिंग है, एनस नहीं है। रियो रिसेप्टर क्या है बेटा आयुष? रियो रिसेप्टर, दीज आर द रिसेप्टर विच सेंस द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये सेंस करते हैं रियो रिसेप्टर। ओके, द रिस्पॉन्स टू वाटर करंट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में वाटर फ्लो, किस डायरेक्शन में, उसे कहा जाता है रियो रिसेप्टर। उसे कहा जाएगा बेटा रियो रिसेप्टर। जस्ट वेट, हाँ फिशेस और एम्फीबियंस में बेटा रियो रिसेप्टर। So this स्क्रीनशॉट घेऊन टाकायचं। Rheoreceptor of fishes and aquatic amphibians are stimulated by water current. In fishes, the lateral line is a sense organ used to detect the movement and vibration in the surrounding water. And the receptor in the lateral line are neuromast. उन्हें कहा जाता है neuromast. Lateral lines are usually visible as a faint line running lengthwise down each side, from the vicinity of the gills cover to the base of the tail. Sometimes part of the lateral organ are modified into electroreceptors, which are organ used to detect the electrical impulse. It is possible that the vertebrates such as shark use the lateral organ to detect magnetic field as well. Most of the amphibians larva एक lateral line organ होता है, मैंने कहा ना, larva and some most adult amphibians also have lateral organ. So these are the present in fishes and aquatic amphibians are stimulated by दोस्तों water current, रियो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। आयुष ने क्या क्वेश्चन पूछा है? आयुष ने क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरली डेड एनिमल क्यों नहीं यूज करेंगे फॉर डिसेक्शन।
तो दोस्तों नेचुरली डेड ऑर्गेनिज्म ही यूज करते फॉर डिसेक्शन पर्पस, जिनकी नेचुरल डेथ होती है, हमारे नेचुरल डेथ होती है तभी हम यूज करते हैं। फॉर टू स्टडी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी अगर पढ़ाई करना है तो उसमें ना एटीपी चाहिए उस मसल में, तो एटीपी होगी तभी तो इसका स्टिमुलेशन मींस क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी। अगर एटीपी धीरे 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 डिप्लेट होती रहती है डेथ होने के बाद, विदिन 24 आवर्स सब एटीपी गायब हो जाएगी। अगर एटीपी नहीं बची तो वो मसल एक्साइट कैसे हो जाएंगे करंट देने के बाद? आर यू गेटिंग मी और नॉट आयुष बेटा? तो एटीपी होती है 24 आवर तक रहती है एटीपी, इसीलिए हम उसको डेड एनिमल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ओके वहां प्रॉब्लम आता है। केमिस्ट्रीचा क्लास सुरू झाला, बाय। चलो पान का फुल फॉर्म है पाइसेस एंड एम्फीबियंस। P for Pisces, A for amphibians, N मतलब एन एमनियोट्स।